جو تھا اچھا تھا، جو ہے بہتر ہے، جو ملے گا بہترین ہوگا۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت کم ہو جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ ایسی خاتون تھی جنہوں نے ایک سادہ گھر اور چھوٹے سے کمرے میں ایسی ہستیوں کو تربیت دی جن کا نور عرض خاکی سے افلاک تک اور عالم ملک سے لے کر عالم ملوک تک چمک اٹھا۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ رومی کہتے ہیں، جب زندگی میں تنہا ہو جاؤ تو جان لو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے اور اسی لیے اس نے سب کو تم سے دور کر دیا۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ رشتے نبھائے نہ جائیں تو نبھانے والے بھی نہیں چاہیے، کسی کو اذیت میں ڈالنے کا کیا فائدہ۔ منایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہوں، جو مصروف اور بیزار ہوں ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ حقیقت، دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، اور اگر کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اپنا خواب عالم یا خیر خواہ کے علاوہ کسی کو بیان نہ کرو۔ لوگوں سے اس طرح گل مل جاؤ کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں اور اگر کہیں چلے جاؤ تو وہ تمہارے آنے کے منتظر رہیں۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو تعمیر حیات کی کتابیں مدد نہیں کر سکتی۔ تعلقات مختصر ہی صحیح لیکن منافقت سے پاک ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہش اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، بد قسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم کا غرور ہوتا ہے مگر اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دے کر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی آپ کی اوقات ہوتی ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دیں۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلافات سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ میڈیکل سائنس جب کسی ریسرچ میں ہزار جتن کے بعد کامیاب ہو کر حقائق کا دروازہ کھولتی ہے تو سامنے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بددعا ہی تمہارا پیچھا کر رہی ہو، بعض اوقات کسی کا ضبط اور بے پناہ صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں بھاری رکاوٹ بن جاتا ہے۔ حقیقت، پیسہ انسان کو اوپر لے کے جا سکتا ہے لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے کے جا سکتا۔ استاد اگر کافر ہوگا تو وہ شاگرد کو قرآن پڑھا کر بھی کافر بنا دے گا، اور اگر استاد مسلمان ہوگا تو وہ انجیل پڑھا کر بھی مسلمان بنا دے گا۔ یہ استاد پر محصر ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ لا علموں کے لیے اہل علم کی وفات سے زیادہ سخت مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے۔ مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسے گی دوسرے اور حساب دے گا تو۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے پھر بھی اس کی کرواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے سامنے دعا کا رشتہ کیسے بناتا۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہے۔ سب سے بدترین کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جائے۔ قلم اٹھانے سے پہلے اتنی تحقیق کرو کہ تمہارے لکھے پر کوئی دوسرا قلم نہ اٹھا سکے۔ دلچسپی کو طلب مت بننے دو، کیونکہ طلب کی شدت بڑھ کر ضرورت بن جاتی ہے اور ضرورت بڑھ کر کمزوری۔ سب سے بڑی سلطنت اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔
दूसरी मर्तबा गर्म की गई चाय और दूसरी दफ़ा जोड़े गए रिश्तों में पहली जैसी मिठास नहीं रहती। थोड़ा वक्त गुजर ही जाता है लेकिन मुनाफिक चेहरे वाजे हो जाते हैं। कभी कभी कुछ भी बोलने का दिल नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि हम अपने एहसास को सही अल्फाज में ढाल नहीं सकेंगे, और अगर ढाल भी ले तो सामने वाला शायद समझ नहीं सकेगा। इसलिए खामोशी का सहारा लिए मुस्कुराकर जीते रहते हैं। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। बिल्कुल इसी तरह जब किसी रिश्ते में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं तो गलतफहमियां ख़त्म करनी चाहिए, रिश्ते नहीं। आजकल का माशरा, पड़ोसी का बच्चा भूखा है ये किसी को नहीं मालूम, मगर पड़ोस की लड़कियां कहाँ जाती हैं ये सबको मालूम है। जाहिल के सामने बेहतरीन अल्फाज इस्तेमाल करना इन अल्फाज की तौहीन और इन्हें ज़ाया करना है। जाहिल को मारने के लिए सिर्फ खामोशी बेहतरीन हथियार है। मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोले। बेशुमार दुश्मन आपको अपने ख़ानदान में ही मिल जाएंगे। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियाँ और खाली गोश्त है। जिस्म को मौत आती है, किरदार को नहीं। अपने किरदार को बेहतर बना लो तो मौत के बाद भी तुम्हें अच्छे अल्फाज में याद किया जाएगा। इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, जहन्नुम से नहीं। हालांकि वो जहन्नुम से बच सकता है, मौत से नहीं। एक शख्स बनकर ना जियो बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो मर जाता है मगर शख्सियत हमेशा ज़िंदा रहती है। माँ बाप की खिदमत व अताअत सब रिस्क और उम्र में बरकत होती है। कामयाबी और नाकामी पर नज़र ना रखो बल्कि अपने मकासद तख्लीक को जानो और जद्दोजहद मुसलसल जारी रखो। मर्दानगी की बेहतरीन सतह यह है कि मर्द की वजह से औरत की आंख में आंसू ना आए। गलती मानने और गुनाह छोड़ने में कभी देर मत करो, क्योंकि सफ़र जितना तवील होता जाएगा वापसी उतनी ही दुश्वार होगी। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। झूठ कभी भी सच को हरा नहीं सकता। अलबत्ता कुछ वक्त के लिए झूठ गालिब आ जाता है, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। हज़रत अली ने फरमाया, हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। बहुत से इंसान ऐसे हैं जिन्हें ज़बान ने मौत के घाट उतारा है। इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ही तब मिलती है जब वो गलत इंसान से अपनी ज़िंदगी की सारी सही उम्मीदें जोड़ लेता है। हज़रत अली से पूछा गया कि इंसान बुरा कब बनता है? फरमाया, जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगे। तुम दुश्मन के दरमियान ऐसे रहो जैसे एक ज़बान 32 दांतों के दरमियान रहती है, मिलती सबसे है मगर दबती किसी से नहीं। मुसलमान और मोमिन में फ़र्क, मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है, मोमिन वो है जो अल्लाह की मानता है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफ़ा वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो तो आपसे अपनी ज़िंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। लोग ढूंढते रह गए कामयाबी को, मौज़िन सारी उम्र कहता रहा हय्या अलल फलाह। दोस्त की गलती रेत पर लिखो ताकि पानी इसे मिटा दे, और दोस्त के एहसास पत्थर पर लिखो ताकि कोई इसे मिटा ना सके। जब तक किसी शख्स से बातचीत ना करो तब तक उसे हकीर ना समझो। सख्त मिजाज मर्द औरत की दिलकश शरारतों से महरूम रह जाता है। दिल जिस बात पर जिद करता है रब उसी बात पर आजमाता है। ये दो चीज़ें हर तूफ़ान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलतफहमी। अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए, क्योंकि बदगुमानी और बदज़बानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। अपनी बीवियों को कभी दुख ना दें, क्योंकि इनकी दुनिया बहुत ही महदूद होती है, जो अपने शौहर से शुरू होकर अपने बच्चों पर ख़त्म हो जाती है। कल की फ़िक्र मत करो, जिस रब ने आज तक संभाल लिया है वही कल भी संभालेगा। 100 साल ज़िंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र ज़रूरी नहीं, सिर्फ एक दिन ऐसा अच्छा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें सैकड़ों साल याद रखे। जब लोग गुस्से में हों तो उनकी बात गौर से सुना करो, क्योंकि असल हकीकत तब सामने आती है। पाप होना कोई आसान नहीं। थके बगैर, रुके बगैर, ना उम्मीद हुए बगैर, तनकीद की परवाह किए बगैर, सिले की तमन्ना किए बगैर, हर मौसम में, हर हालत में, चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में मोहब्बत, लब पर दुआ, हौसले और जुर्रत के साथ मुसलसल चलते रहने का नाम बाप है। नीयत साफ़ हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। अपने यकीन को कमज़ोर मत होने दो, रब वो देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते फिर वो आपसे नफ़रत करने लग जाते हैं। वक्त नज़र नहीं आता मगर दिखावा और सिखा बहुत कुछ जाता है। मायूस नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले इनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं।
जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना अफजल समझते हैं, इसी तरह अगर ज़िंदा को सहारा देना अफजल समझ लें तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। खुश रहने का सबसे अच्छा उसूल ये भी है कि जहाँ लगे कि आपकी जगह नहीं, वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर लो। कुछ सिखाया, किताबों ने भी रहनुमाई की, लेकिन इंसानी रवैयों ने जो सबक दिया, ना तो वो ज़िंदगी के किसी वर्ग पर और ना ही किताब के किसी सफ़े पर तहरीर था। ये कैसा वक्त है, यहाँ कोई अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दूसरों के सुख से दुखी है। हम वहीं तक अच्छे होते हैं जहाँ तक दूसरों के मयार के मुताबिक होते हैं। छोटी सी ज़िंदगी ने बड़ा सबक दिया, रिश्ता सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। हासिद के लिए बस यही सज़ा काफ़ी है कि जब तक तुम खुश होते हो वो गमगीन हो जाता है। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। लफ्ज़ आप और तुम दोनों का मतलब एक ही होता है, पर इससे बोलने वाले की तरबियत का पता चलता है। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। अच्छा दोस्त जितनी चाहे बार उठे, उसे बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि तस्बीह के दाने चाहे जितनी बार बिखरे, चुन लिए जाते हैं। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। अस्तगफार, तुम्हारी परेशानी का अजाला, गम का मदावा, गुनाह की सफाई, दिल का चैन और रिज़्क़ का मौजिब है। माफ़ी मांगना ये ज़ाहिर नहीं करता कि आप गलत और दूसरा सही है, बल्कि ये ज़ाहिर करता है कि आपके नज़दीक रिश्ते अना से बढ़ के हैं। ताज्जुब है कि अल्लाह इतनी सारी मखलूक में से मुझे नहीं भूलता, और मेरा तो एक ही अल्लाह है, मैं इसे भूल जाता हूँ। ये दिल ही तो है जो बगैर रुके सालों साल काम करता है, इसे सुकून दे, चाहे यह आपका हो या आपके अपनों का। रिज़्क़ हो या मोहब्बत, कदर ना करो तो खुदा छीन लेता है। हम सारी ज़िंदगी ये सोचने में गुजार देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और आखिर में लोग बस इतना ही कहते हैं, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुद को समझदार ज़रूर समझो, मगर दूसरों को बेवकूफ़ समझने की बेवकूफ़ी मत करो। दोस्त, उन लोगों को खोने से डरो जिनके नज़दीक दोस्ती के रिश्ते खून के रिश्तों से ज़्यादा अजीज़ हैं। सच की बात, रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते, और कुछ खामोशी से अपने हो जाते हैं। बेशक अल्लाह सीनों के छुपे हुए राजों से वाकिफ़ है। अल्लाह ताला पर यकीन का सफ़र बेहद सुकून देता है। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा अज़ियत में रहोगे। या तो खुद को मजबूत कर लो या तो मसरूफ़ कर लो। माँ वो हस्ती है जिसकी पेशानी पर नूर, आँखों में ठंडक, अल्फाज में मोहब्बत, आगोश में दुनिया भर का सुकून, हाथों में शफ़क़त और पैरों तले जन्नत है। ज़माने का शिकवा ना करो, बल्कि ख़ुद को बदलो, क्योंकि पाँव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना। हमेशा सच्चे लोगों से दोस्ती रखो, क्योंकि वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफ़िज़ होते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, मैं जन्नत के शौक़ में इबादत नहीं करता, ये तिजारत है, और ना ही जहन्नुम का खौफ करता हूँ कि ये ग़ुलामी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। हर गलती आपको पहले से एक अक्लमंद और बेहतर इंसान बना देती है, बशर्त कि आप हर गलती से कुछ सीखें। कामयाबी और नाकामी पर नज़र ना रखो, बल्कि अपने मकासद तख्लीक को जानो और जद्दोजहद मुसलसल जारी रखो।